So, So let us continue our yesterday's class. What is void contract? Question क्या था? Void contract क्या है? A contract can never be void ab initio. A contract can never be void void ab initio. Because contract अगर बनना बोले तो पहले वो एग्रीमेंट रहना, और एग्रीमेंट भी क्या है? एनफोर्सेबल रहना, वही कॉन्ट्रैक्ट बनता। ठीक है। और जो अगर वो and it already has satisfied the section 10 of the Indian Contracts Act 1872. Okay. Yes. Therefore, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. We have seen it yesterday. उसके बाद में then we have to start the voidable contract. ठीक है? Yes. Now, whenever a term is given, what will be your पहला line? The term voidable contract is defined under section 2. The term voidable contract is reference देना है आपको पहले. Yeah. The term voidable contract is given under Section 2I of the Indian Contracts Act 1872. Of the 1872. Yes. Okay. फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया, an agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law at the option of one. At the option of one or more of the parties, but not at the option of others. But not at the option of other is known as voidable contract. मतलब अगर कोई दो पार्टियां हैं, अगर एक पार्टी एग्रीमेंट को निभाना चाह रही और वो कोर्ट में जाके बोल रही कि भाई मेरे को तो निभाना है, तो वो क्या हो जाता? वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाता। ठीक है। तो बेस्ड इट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। So, voidable contract is given under Section 2I of the Indian Contracts Act 1872. Yeah. Next, voidable contract is continue कर रहे अपन। In a voidable contract, one of the parties, ये जो लाइन देखे थे पॉजिटिव डेफिनेशन देखे थे अपन, दिस लाइन इज फॉर पॉजिटिव डेफिनेशन। दूसरा लाइन जो है, इन voidable contract one of the parties can avoid. voidable contract का इंपॉर्टेंस क्या है? One of the parties can avoid the contract. One of the parties can avoid the contract or rescind the contract. माने पीछे हट जाना है, कैंसिल कर देना the contract and go to the court for declaring it to the void. ठीक है। अपने आप से खुद भी नहीं होता। अगर आपको पीछे हट जाना है या अवॉइड करना है तो आपको कोर्ट को जाके कराना है, कोर्ट से कराना है, आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है। उसको बोलते void. If the party insists on performance, then the contract can be enforced as well. या तो पीछे हट जाने की बात कर रहे हैं, या तो जिद पे है ये होना तो होना बोल के, तो वो भी क्या किससे करा सकते हैं? कोर्ट से करा सकते। ठीक है। that too has to be done with the by the court, through court. समझ में आ रहा? they are known as voidable contract. नेक्स्ट, अब कौन से इससे voidable हो सकता voidable contract? Like void what makes a contract नहीं होता, voidable contract is possible, याद रखिए। Okay. ठीक है। नेक्स्ट,
क्या है बोलिए? If the consent of the party is taken by coercion, then such contract is voidable. If the consent of the parties is taken by the, when voidable Coercion. contract कब बनता? voidable contract कब बनता? पहले तो क्या है? कंसेंट। क्या है? द कंसेंट Consent. इज टेकन Permission. बाय कोर्जन। कोर्जन मतलब Yeah. दबाव डाल के। then the contract is voidable। coercion इधर कीवर्ड है। the consent of the party is Yes. taken by coercion, then the contract is voidable। ठीक है। नेक्स्ट, Yeah. Like threatening. कुछ भी थ्रेटनिंग करके या मजबूर करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल Yeah. करके, तो क्या हो गया? वो कोर्जन हो गया। यू Yeah. हैव सीन इन डिटेल। Any act which is forbidden by the Indian Penal Code. यस, विच यू हैव सीन इन डिटेल। Yes. ठीक है। नेक्स्ट, इट मीन्स इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी हु टेक द कंसेंट, but is not binding on the party whose consent is vitiated by coercion। Coercion. मतलब जो पार्टी, इट मीन्स इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी हु हैज टेकन द कंसेंट। कंसेंट तो लिए, और वो कंसेंट भी कैसा रहना? फ्री कंसेंट रहना। और वो कंसेंट क्या है? कोर्जन से नहीं लेना। समझ आ गया? Okay. So वो in a sense free consent जैसा. फ्री कंसेंट 13 और 14। 13 क्या है? कंसेंट है। फ्री कंसेंट क्या है? 13 consent. Permission. कंसेंट, दैट इज योर परमिशन, लीव। समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है? The party whose consent is vitiated by coercion can go to the court and contract get rescinded। Yes. मतलब जिसका जिसका कंसेंट कुछ Forcibly कोर्जन लिया से गया लिए, हो. तो वो हाँ. पार्टी क्या है? कोर्ट को जा Can go सकती, to court कैन गो टू द कोर्ट and can avoid the contract. एंड कैन अवॉइड एंड कैन गेट Rescind. द कॉन्ट्रैक्ट rescinded। ठीक Yeah. है। समझ में आ Yes. रहा? पीछे ले लेना माने कैंसिल करा देना। rescinded माने कैंसिल करा देना। Okay. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. दिस आर द voidable कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। नेक्स्ट देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है। रिमेम्बर, कभी भी क्या है, ऐसा एकदम नींद में आए, उठ के चले गए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कराना है बोले तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है? इफ द ऑप्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, अगर टाइम गिवन टाइम में नहीं कर लिए, तो ये हमेशा अवेलेबल रहने वाली चीज नहीं होती। Okay. अगर आपके पास ऑप्शन है वॉइडेबल कराने का, तो टाइम लिमिट के अंदर करा लेना। अदरवाइज क्या हो जाता? It will become compulsory for the other party to respond. कॉन्ट्रैक्ट्स विल बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टी। Okay. अगर आपके पास टाइम है तो टाइम के अंदर करा लेना, नहीं तो वो क्या हो जाती? बाइंडिंग हो जाती। ठीक है। अभी जो ये जो Okay. टर्म है रीजनेबल टाइम बोल के, रीजनेबल टाइम किसको बोलते हैं? व्हाट इज रीजनेबल टाइम नाउ? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब आप बोल नहीं सकते कितना रीजनेबल टाइम बोल के बोल नहीं सकते। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो चाहे हार्ड एंड फास्ट रूल कोई कोडिफाई नहीं कर सकते कि भाई कितना टाइम होना बोल के, वो कोर्ट डिसाइड करता क्या आप रीजनेबल टाइम के अंदर आए या नहीं आए। आए तो गुड, नहीं आए तो वेरी गुड। कोर्ट बोलता भाई ठीक है जाओ, आ गए तो ठीक है चलो, ओके अगर आपका केस में दम है तो से ओके ठीक है रेसिडेंट, अदरवाइज जाओ जाके कॉन्ट्रैक्ट निभाओ बोल के बढ़ा देता हूँ। मेरा पॉइंट। Okay. Yes, और sir. ये क्या है? रीजनेबल टाइम को फिक्स लिमिट नहीं है। क्वेश्चन आपको आ सकता, ये जो रीजनेबल टाइम दिया हुआ है क्या इसको फिक्स जो है क्या कुछ? नो इट इज नॉट
fixed. It is It not. depends on the facts. And circumstances. Facts and Yes. circumstances of Circumstance. the case. हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग रहता है. रीजनेबल है तो देते ना, तो नहीं तो समझ आ गया. Yes, sir. अब when the contract is voidable, अब voidable contract तो बोल दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट voidable कब है, मेजर रीजन क्या क्या रहते, वो आप पहले ही पढ़ लिया है. You are just revising it now. Yeah. If the consent is Yes. taken by coercion पढ़े अभी, Coercion. Yes. undue influence पढ़े, Undue influence. fraud, Yeah. misrepresentation. Now tell me coercion कौन से सेक्शन में है? Section number Under 15. section Section number 15 of Indian Contracts Act 1872. yes. undue influence किसमें है? Undue influence is defined under section number 16 of Indian Contracts Act 1872. fraud किसमें है? It is under section number 17. Section 17 17 of of Indian Contracts Act 1872. misrepresentation. It is defined under the section 18 of Indian Contracts Act 1872. Indian Contracts Act 1870. तो ये जो हुआ, तो इससे अगर ऐसा कंसेंट लिए Then तो it the becomes the contract will become voidable. voidable. Void contract कुछ नहीं रहता, याद रखिए. There is nothing like void contract, but the contract can be voidable Void. as per the Indian Contracts Act 1872. ठीक है. नेक्स्ट, अब voidable contract देख लिए, void contract नहीं होता, voidable agreement देख लिए, void agreement देख लिए. अब उसके बाद में essential elements of contract. Let us see the essential elements of contract. एक contract में रहना क्या? Agreement is made by the parties and the contract is made by law. Contract किससे बनता? Agreement से बनता. Agreement में कौन कौन रहते? Parties रहते. अगर आपको क्वेश्चन आ गया, agreement is made by the parties and the contract is made by the law, comment, तो क्या लिखते हैं आंसर? The question comes as agreement is made by the law and the contract is made by the agreement is made by the parties and the contract is made by the law. What will your answer? Hello. If the question comes, agreement is made by the parties and the contract is made by law, then what will your answer? What will you write? Like, I did not understand the question. देखिए, agreement is made by the parties. Yes. And the contract is made by law. Okay. ठीक है. Now what? Comment. आ गया क्वेश्चन डायरेक्टली 15 मार्क को. Then what he is asking? He is asking the 6 मार्क को आ सकता है, 15 मार्क को आ सकता है. Then he is asking the essential elements of contract पूछ रहा आपसे. Okay. ठीक है. अब अगर essential elements of contract माने तो आपको पहले से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता. क्या है? वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. पहले ऑफर देना, प्रपोजल होता, फिर उसको एक्सेप्ट होता. अगर एक्सेप्ट हो गए बाद में क्या करते? लॉफुल कंसिडरेशन देते. जैसा लॉफुल कंसिडरेशन देते, आपको ये भी देख लेना कि कंपीटेंट पार्टीज है. कि अगर पार्टीज कंपीटेंट है तो कंसेंट लेना. कंसेंट कैसा रहना? फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट रहना. द कंसेंट शुड बी लाइक फ्री कंसेंट.
इट शैल नॉट बी इम्पोजिंग। और अगर कंसेंट भी ले रहे तो अगर काम भी कर रहे तो लॉफुल ऑब्जेक्ट रहना, कानूनी तौर पे लॉफुल रहना, और नॉट अदरवाइज डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय एनी लॉ, कानूनी तौर पे रुकावट नहीं रहना। ये आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी का आप आंसर बना लेना, ये पूरा कंसेंट भी मालूम है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी मालूम है, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? हेलो, Yes. नेक्स्ट, चलो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. No, similarly the same thing which has been written once again here, valid offer and acceptance, Lawful considerations. lawful considerations, Parties must be competent to contract. competent to contract, Consent of the parties should be free. Free consent. that is free consent, object should be Lawful object. lawful, not be otherwise declared to be void Void. by any other provisions of contract or other law, ठीक है? क्लियर है पॉइंट इधर तक? तो ये चीज है, इसको आप बढ़ा ले सकते हैं। अभी तक अपन इतना पढ़ लिए कि वुड इजीली राइट सम आंसर ऑन दिस, ठीक है? तो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट ए Create कॉन्ट्रैक्ट। contract. अब देखिए, इंटेंशन टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट माने क्या, इसका मतलब क्या रहा? इट इज इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल Relationship. relationship. It is the intention to create legal relationship है। The Indian Contracts Act does not contain any provision। अगर आपको क्वेश्चन उन्हें घुमा के पूछ सकता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटेंशन है क्या लिखे हुआ कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। The Indian Contracts Act does not contain any provision which mandates the requirement of intention to creating the intention to create a contractual obligation। लेकिन अपन इससे पहले पढ़े थे, अगर ये क्या है, कानून कोर्ट के डिसीजन से आता, इट कम्स थ्रू द कोर्ट डिसीजन, ठीक है? Okay. केवल अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है। अगर आप कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस्तेमाल होता है, ठीक है? क्लियर है Yes, पॉइंट? sir. देखिए, अभी तक नाउ टिल दिस पॉइंट आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द थियोरेटिकल एस्पेक्ट। अभी तक मैं आई हैव नॉट डिस्कस्ड एनी केस लॉस विद यू। लेकिन जब तक आप केस Okay. लॉस नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलते। कितना भी थियरी लिख लो आप, सेक्शंस आपको मैं Okay. डिस्कस कर रहा हूँ, बट आई डिड नॉट डिस्कस द Yes. केस लॉस। अब इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉस है। कौन से है? पहला क्या है केस लॉ? व्हाट इज द फर्स्ट केस लॉ यू आर एबल टू सी? Yes. व्हाट इज द केस लॉ? The first one is Rose and Frank Company versus J.R. Compton and Brothers Limited. 1923। In now 1923. please remember, we अपन कुछ भी नहीं करे, we never had this original one। so किसका है ये? इंग्लैंड के है पूरे आप। लेकिन बाद में when it is प्री इंडिपेंडेंस एज वेल एज पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है? Okay. और थोड़े थोड़े केस ऐसे हैं जो इंग्लैंड में हुए हुए 1872 के पहले भी है, ठीक है? ये कानून आने से पहले भी है, ठीक है? तो अपने Okay. को इसका रेफरेंस लेना है, ऐसा डीप में नहीं जाना है, बस उसका रेफरेंस लेना है, ये केस में क्या हुआ, क्या बोले। तो पहला क्या है? रोस Okay. एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस जीआर कॉम्पटन एंड J.R. ब्रदर्स लिमिटेड। versus आपका केस है ये 1923 का। 19. सेकंड केस क्या है? Dalrymple versus Dalrymple in the year 1811. 1811, बहुत पुराना है। CWT वर्सेस अब्दुल हुसैन मूला मोहम्मद अली 1980।
8 पोस्ट Eight. इंडिपेंडेंस है ये। But sir, बनवारी why do we लाल, क्या like बोले? these are too old, right? These are, These are too old, right? यस, ये इसे तो So इवॉल्व, why do we consider cases that are old? क्या बोले? Why do we consider those cases that are old? Can't we take any like recent one? These are the landmark cases. These are Okay. the landmark cases which helped in evolving the law, which has been Okay, okay. evolving the law. एक एक सेक्शन में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करे सर केसेस में, यू विल अंडरस्टैंड। जब अपन आगे जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड के एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। देयर टू, अपन सेक्शन में नॉर्मली पढ़ लेते, बट द केस लॉस एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच सिंगल टर्म। ठीक है, तो दिस आर द लैंडमार्क Yes. केसेस। और जब आप सेक्शन सी देखते, एग्जाम में आपको सेक्शन सी आता, तो Section आपको एक C. केस लॉ दे देता हूँ, इलस्ट्रेशन दे देता सिमिलर टू दीज केसेस। जब आपको याद आना है कि भाई दिस सिनेरियो, दिस इलस्ट्रेशन इज वेरी सिमिलर टू डाल लिम्पल वर्सेस डाल लिम्पल, और Okay. आप जज बनने वाले हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू बिकम ए Inshallah. जज। आपके सामने Inshallah. जो Inshallah. दलीला, आर्ग्यूमेंट जब देते, तो पेटिशनर के साइड से एज वेल एज रेस्पोंडेंट के साइड से जो ना पिटिशन डालते, तो आपको फेवरेबल केसेस देते, आपको Okay. कहाँ कहाँ से उठा के देते आपको। तो आपको अच्छा. 1800 का भी केस मिल जाता, तो आपको पढ़ना। Okay. और देर इज ए डॉक्ट्रिन कॉल्ड स्टेरी डिसाइसिस का डॉक्ट्रिन रहता, स्टेरी डिसाइसिस। नॉर्मली जजेस क्या करते, अगर आपको एक केस आया सिमिलर, तो वो उसका जजमेंट देखते, और वो जजमेंट के हिसाब से आज का जजमेंट लिखते। अगर एकदम ही वो, नॉर्मली जजेस पुराने जजमेंट को नहीं पलटते, जो है अगर सिमिलर है तो वही सिमिलर जजमेंट दे देते आप। अच्छा, अच्छा. इसलिए अपने को वो पढ़ना रहता पुराना। अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पूरे को चेंज हो गए, तो आप अपना जजमेंट लिखना। और जब आप अपना जजमेंट अच्छा. लिखेंगे, तो आपका प्रेसिडेंट बन जाता हो। आप जो जजमेंट लिखते गए, तो नेक्स्ट जो फ्यूचर जजेस आने वाले हैं, आपके जजमेंट को इस्तेमाल करेंगे कि ये केस में हाँ. जस्टिस Difference. ये जजमेंट दिए थे बोल के। तो यू हैव टू वेरी Okay. क्लियर कि भाई कौन सा जजमेंट इस्तेमाल करना है, कौन सा जजमेंट इस्तेमाल करना नहीं है, कौन सा कंसिडर So करना, sir, कौन सा ऐसे कंसिडर नहीं करना। ऐसे कई सारे केस लॉस होंगे फिर. थाउजेंड्स ऑफ केसेस, केस लॉस। Okay. So आपको, how can we deal with all of these ओके, cases? नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यू नीड, अपन को खुद भी बट्टी Okay. मारना नहीं है। अभी तक मैं आपको खुद भी बट्टी मारने नहीं लगाया, एक्सेप्ट द सेक्शन नंबर। आपको Yes, sir. आपको बट आपको बट्टी मारना कुछ भी नहीं है। आप जज भी बने तो आपको बुकान सामने रहते हैं। आप अच्छा. एग्जाम के लिए थोड़ा याद रख लेना बस। हम्म. The beauty of becoming a judge is if the very material is in front of you, everything is at your disposal. The only thing is you need to know where to look for the judgment। और वो भी आसानी कर देते आपको पिटिशन में, आपको पिटिशनर साइड एज वेल रेस्पोंडेंट साइड दोनों भी लिख के दे देते कि ये देखो, ये जजमेंट देखो बोल के, तुम्हारे फेवर में दियो जजमेंट बोल के। आपको पढ़ने आना बस है, और समझने आना। Okay. आपने को याद रखना कुछ भी नहीं है। और एग्जाम में उसका रेफरेंस है, आप जितने बार रिवाइज कर लेते, आपको दिमाग में आ ही जाता। लैंडमार्क केसेस रहते, अच्छा इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था वो। ठीक है, Yes, sir. तो CWT वर्सेस अब्दुल हुसैन मूला एंड मोहम्मद अली का ये था। बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल 1973। Mhm. ये पूरे केस लॉ से किसके रिलेटेड है ये? इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लीगल रिलेशन. बालफोर वर्सेस बालफोर, बहुत ही इसका क्या आप है। एग्जाम पहले यस, दिए थे आपके. If there is no intention to create legal relationship, then it is not an agreement. यस, आपको याद है, आई डिड नॉट इवन मेंशन दैट। जब आप Yes. कॉन्सेप्चुअली समझते चीजों को, आप ऑटोमेटिकली याद हो जाता।
Yes, sir. मैकग्रेगोर वर्सेस मैकग्रेगोर 1888 का है। जोन्स वर्सेस पडवाटन 1969 का है। पूरे याद नहीं रखना है आपको, जो जैसा आपने को समझ में आ रहा है वो ऐसा याद रखना है। सिम्किन वर्सेस पेस 1955, ये चीज याद रखना है, ठीक है। लाइक सर बार बार रिपीट कर रहे ना, तो वो रिपीट करने में ही याद हो जा रहा। लाइक कोई आपको ऐसा एफर्ट डालने की नहीं पड़ा। एक बार रिवाइज तो कर रहे होंगे ना। हाँ, रिवाइज तो हम कर रहे रिवीजन इज द की। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, रिवाइज नहीं करे तो नहीं होता, हैं। नथिंग यस विल सर। सर्वाइव, ठीक है। सो रोज एंड यस फ्रैंक सर। कंपनी वर्सेस जूनियर, ये सो क्या है, विल सी ईच केस लॉ, विल सी ईच केस लॉ। एक केस लॉ में क्या बताया, रोज एंड फ्रैंक में क्या हुआ, डालिम्पल वर्सेस डालिम्पल में क्या हुआ, सीडब्ल्यूटी में क्या हुआ, बनवारी लाल में क्या हुआ, बालफोर वर्सेस बालफोर में क्या बोले, मैग्रेगोर वर्सेस मैग्रेगोर में क्या बोले, जोन्स वर्सेस पटवाटन में क्या बोले, सिम्किन वर्सेस पेस में क्या बताए। So we'll see all these cases. ठीक है। यस So सर। we have 1 minute left in our today's सेशन टू एंड। today's part 1 session. आपको टाइमिंग दिखा रहा उधर, as it is a free session 40 minutes का ही रहता ना free session. Is any timing is given anywhere on the screen? नो, इट इज नॉट। 1 minute 16 कुछ टाइमिंग फ्रेम दिख रहा नहीं दिख रहा? नहीं सर। आई थिंक यू आर द होस्ट, इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन आई थिंक। Even on the participant screen it will also appear. नहीं दिख रहा आपको कुछ भी उधर? नो। लैपटॉप नहीं में नहीं दिखा था आई। मेरे ख्याल, और फ्रॉम द फोन से देख रहे हो? जी। So please log in after 1 minute. We'll discuss the important case law. ओके सर। यस। So I'm just concluding this session now. ओके।